So I welcome you to the free English essay session. This is the month of June. This is 1st June today. And इस सेशन को स्टार्ट करने का बेसिकली मकसद ये था, as you know very well, कि a lot of aspirants hail from humble backgrounds and most of them fail in English essay paper. So इस पेपर को कैसे हैंडल किया जाए, इसकी क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सेशन बेसिकली उसके बारे में है। One major thinking behind this idea was that financially academies are charging much on for this paper. So I've just tried to make this very simple and for that matter free for all of you. So 10 से 12 दिन ये हम सेशन क्लासेस लेंगे and then you will see a very remarkable change in your overall approach as to how you should be writing an essay. So this is just one contribution on my part. एक हमने अप्रैल में की और अप्रैल में भी इस तरह का सेशन किया and then turnout was much huge. Based on that, I got requests again कि सर इस तरह का सेशन शुरू कर लें, and that's why I registered Zoom and then we are here online. सो ये क्लास रेगुलर होगी, मंडे टू सैटरडे होगी, संडे यू विल बी गिवन ऑफ एंड कुछ काम आपको दिया जाएगा दैट यू विल बी एक्चुअली राइटिंग. So we start with the simple things. I hope you all of maybe majority of you already knows me, but in case you don't know, we will start with this sequence: introduction, CSS 2027, essay orientation, why aspirants fail in the light of FPSC report, how to handle essay paper questions and answers. So I would be very brief about my competitive journey of competitive exam. I hail from district Hypermeers. There's a village, Mohammed Yusuf Kaloda. I hail from there. I had early education there in my hometown, and then I went to Cadet College, Ladkana, back in 2008 to 2013, from class 8 to intermediate. Uh, these are some of the pictures of my college journey. फिर उसके बाद आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और वहाँ पे मैंने बीएस ऑनर्स हिस्ट्री में किया फ्रॉम 2013 टू 2017 एंड अल्हम्दुलिल्लाह secured roll of honor in debates as well. And then I started my competitive journey and the competitive journey of my this particular exam during my university. कुछ सब्जेक्ट्स दौरान यूनिवर्सिटी किए, अंग्रेजी के ऊपर दौरान यूनिवर्सिटी काम किया और जब इवेंचुअली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो 6 से 8 महीने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी प्रिपरेशन की. 2018 एंड 2019 वर द 2 years जिनमें पीएमएस और सीएसएस के जो दोनों एग्जाम्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपीयर्ड इन बोथ ऑफ देम. So a total of four of them, qualifying three in a row and failing just one in Islamiyat, and eventually ending up in Police Service of Pakistan CSS 2019. So CSS 2018, unfortunately, I failed in Islamiyat just by 3 marks. As you know, कि man proposes, God disposes. रेट्रोस्पेक्टिवली मैं देखता हूँ कि अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो भी जाता तो आई कुड हैव बीन इन अ वेरी लो रैंकिंग ग्रुप, बट इट वाज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह के फिर जो दीगर एग्जाम्स थे बेस्ड ऑन दिस प्रिपरेशन आई क्वालिफाइड पीएमएस इन 2018 and then CSS 2019 and again PMS in 2019 qualified. So ये इतनी मुश्किल जर्नी है नहीं, but again it requires a lot of effort, dedication, consistency and commitment. सो आप में से हैं स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स जो मेहनत करना चाहते हैं, ये सेशन मैंने इसीलिए शुरू कराया है कि सिंस वी ऑल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस और प्रोसेस में अगर हमें ठीक गाइडलाइन मिल जाए और फ्री में मिल जाए तो इससे तो बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती.
सो अब हम अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आते हैं। CSS 2017 का जो एसए का एग्जाम है उसकी आपने क्या लाइन ऑफ थिंकिंग रखनी है? फ्रॉम मिथ टू मास्टरी, लेट्स सी। टू स्टार्ट विथ, आप सबको पता है कि हर साल सीएसएस के एग्जाम में 40,000 प्लस एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। आउट ऑफ देम 20,000 क्वालिफाई एमपीटी, 10,000 appear for written, and hardly 300 to 400 make it to written exam। वो क्वालिफाई कर लेते हैं। 270 या 200 प्लस सीट्स होती हैं जिनमें फिर एस्पायरेंट्स फर्दर एलोकेट हो जाते हैं। रेशो जो फेल्यूर का है वो सबसे ज्यादा है ही इंग्लिश ऐसे पेपर में। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, यू नो दिस वेरी वेल। वन, सेकेंडली, अगर हम ओवरऑल फेल्यूर रेशो देखें तो ऐसा क्यों है कि हर साल ही ऐसे फेल हो रहे हैं एस्पायरेंट्स के, डिस्पाइट दे गो थ्रू एन असेसमेंट प्रोसेस। लाहौर की जर्नी की कुछ टेक अवेज में बताऊं तो आई यूज्ड ऑब्जर्व कि एस्पायरेंट्स पहले माशाल्लाह ग्रामर के ऊपर 6 महीने लगाते हैं, फिर उसके बाद बेसिक ऐसे राइटिंग सीखते हैं, फिर 3 4 टीचर्स के पास जाते हैं, ऐसे सीखते हैं, बट अगेन रिजल्ट आता है तो ऐसे का उनका पेपर थोड़ा सा पास नहीं होता। दिस इज अगेन वेरी डिसहार्टनिंग। तो इसलिए थोड़ा सा इस सेशन को आप लोगों ने सीरियस लेना है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। एक और प्रॉब्लम आ जाता है एफपीएससी की गाइडलाइंस में। एफपीएससी की गाइडलाइंस बड़ी वेग किस्म की हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस एक ऐसे लिख लेना है। तो ड्यूरिंग एग्जाम कैसे रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव हो, और अनफॉर्चुनेटली एस्पायरेंट्स उन टेक्निकलिटीज में ही परेशान हो जाते हैं कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, या ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, किस तरह का ऐसे है। सो ये सारी चीज़ें आपको हम इस सेशन में बिल्कुल अच्छे तरीकेकार से कोशिश करेंगे कि सिखा दें। So coming to the basic question, why most of the aspirants fail in competitive exam, things are very much clear। सबसे पहली चीज जो आपको खुद करनी है वो है ग्रामर का पार्ट। मैं ग्रुप में किताब भेज दूंगा एक दो जिनको आपने गो थ्रू करना है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस पी बख्शी। आप अगर सीएसएस के कंपोजिशन पेपर के बुक्स देखेंगे, रिकमेंडेड बुक्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बुक्स मिले हैं जिनमें से समझ नहीं आता कि कौन सा बुक कब जो है ना स्टार्ट किया जाए। तो सबसे उसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इस बुक को पढ़ेंगे, बिकॉज दिस बुक कंटेन्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज बुक्स। उसके बाद इस सेशन में हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जिनकी वजह से एस्पायरेंट्स फेल होते हैं। पुअर स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइंस एंड पैराग्राफ्स। डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट तरह की आउटलाइंस बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड दैट। थीसिस स्टेटमेंट लिखना नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, लॉजिकल फ्लो, ये इश्यूज हैं। जब ये हल हो भी जाते हैं तो फिर कंटेंट का सबसे बड़ा मसला है कि सर लिखना तो चाहते हैं, ग्रामर भी ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता क्योंकि हमारे पास मवाद नहीं है। तो हम एक क्लास उसके ऊपर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इन एसे राइटिंग, इस स्टेज पे क्या हो, और जब आप जनवरी में अपीयर होंगे तब क्या होनी चाहिए। सो एसे शुड बी रिटन एज अ लीगल आर्गुमेंट, नॉट एज अ न्यूज़पेपर कॉलम। दिस इज द ओनली वे यू कैन क्वालिफाई इंग्लिश एसे पेपर। अगर आपसे वन वर्ड में पूछा जाए कि जी एसे की बेसिक्स क्या है, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? नंबर वन, ग्रामर। आई टोल्ड यू इट्स योर बेबी, आपने इसको खुद करना है। दिस सेशन इज नॉट डिजाइन फॉर दिस। सेकंड, ये कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं आउटलाइन मेकिंग स्किल्स की। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखा जाए, बॉडी के पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाएं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, स्पेशल काइंड ऑफ पैराग्राफ, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स, ये किस तरीके से लिखे जाएं। दिस डिबेट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एसे। देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसे, then content, and then time management.
तो ये सारी चीजें माँ सवाए ग्रामर के हम इस सेशन में सीखेंगे ताकि आप अपने ऐसे के पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। Takeaways at the end of the session will be structure beats vocabulary, argument beats information, balance beats emotion, and clarity beats complexity. अब जैसे कि हमने बात कर ली कि ग्रामर इज योर कॉल, आपने इसको खुद ठीक करना है, बट देयर आर फ्यू टेक अवेज जिनकी वजह से आपने इसको थोड़ा सा बेहतर कर देना है। जिस तरीके का से आपने उसको बेहतर कर लेना है, सबसे पहले तो ये है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। दिस इज द बेसिक सर्वाइवल रूल। जो किताब मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, उसमें ये चीज़ें कैटेगोरिकली दी हुई है। करेक्ट यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ना सिर्फ आपको ऐसे के पेपर में हेल्प आउट करेगा, बट कंपोजिशन के पेपर में जो 5 नंबर की करेक्शन पूछी जाती है उसमें भी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इनफॉर्मल लैंग्वेज से आपने अवॉइड करना है, फॉर्मल लैंग्वेज की तरफ आना है, पंक्चुएशन कंट्रोल आपने सीखना है। ये बेसिक टेक अवे हैं कि अगर आप ग्रामर के ऊपर काम करना चाहें, जो कि आप खुद कर सकते हैं, तो आपने इस तरीके कार से कर लेना है। एस्पायरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है रिडंडेंसी या रेपिटेशन। वो ये है कि आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर वाइज आपने उनको जज करना है। नंबर वन, पाकिस्तान हैज मेनी प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स। अक्सर और बेशतर राइटिंग्स जो मैं असेस करता हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो इस तरह की होती है। However, the better form could be Pakistan faces numerous structural challenges, many of which are deeply entrenched. इस तरीके का से आपने ऐसे के पेपर का जो स्ट्रक्चर है ग्रामर के जरिए इंप्रूव कर लेना है। सो गोल्डन रूल इज सिंपल। इन ऐसे पेपर, grammar doesn't get you good marks, but bad grammar definitely loses them. एज अ रीडर, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखेंगे कि किसी एस्पायरेंट की ज्यादा हैं, तो यू वुड लूज इंटरेस्ट इन इट्स राइटिंग। कि बस इसमें मैं क्या पढूं, इस बंदे की तो बेसिक ग्रामर ही ठीक नहीं है। हैविंग सेड दैट, ग्रामर के बाद हमने बात की कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है ऐसे राइटिंग की, वो है स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उससे मुराद ये स्लाइड है। यह है कि आपका एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। स्ट्रक्चर की पहली चीज यह है कि देयर शुड बी एन आउटलाइन। वी विल डेडिकेट some 5 days on this particular thing and 1 day on thesis statement. फिर आपका जो टोटल ऐसे है, इट कंसिस्ट ऑफ वन इंट्रोडक्शन, वन कंक्लूजन एंड 18 बॉडी पैराग्राफ्स। ओवरऑल आपका ऐसे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिनिमम of 16 paragraphs, and at max it is 20 paragraphs। इसके अराउंड आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। So my takeaway is simple: if your structure is clear, your essay will pass. If it is confused, nothing else is going to save you from this। ग्रामर भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया। उसके बाद हम चूंकि ज्यादातर फोकस करेंगे इस पूरे सेशन में स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये जो हम 15 दिन क्लासेस करेंगे, 30 to 35 मिनट्स की मुख्तसर, रेलिवेंट, टू द पॉइंट जो हमारी क्लास होगी, उसमें हमारा गेम प्लान क्या होगा, जस्ट लुक एट दिस। आज था डे 1 ओरिएंटेशन। कल हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो है डिक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश ऐसे किस तरह का होना चाहिए। वी विल टॉक अबाउट दैट वंस वी आर डन विद दैट। उसके बाद हम आ जाएंगे डे 3 to 5 के ऊपर। 5 दिन हम सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स। अगर आप स्ट्रक्चर वाली स्लाइड को याद कर रहे हैं, तो उसमें जो 18 बॉडी पैराग्राफ्स हमने देखे हैं, वो किस पैटर्न पे लिखे जाएंगे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, दिस विल बी अबाउट दैट। फिर हम आएंगे आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपने सेशन से सीख जानी है। Because we are going to cover not only basic topics, but some of very advanced topics and techniques related to those topics.
ताकि आपको एम्पावर किया जाए इंटेलेक्चुअली कि डिफिकल्ट तरह के टॉपिक्स भी आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। One day will be dedicated to thesis statement and one to introduction, one to conclusion। कुछ हमारे ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जिनको हम स्पेशल काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स कहते हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, पैनिक इन राइटिंग किस तरीके से अवॉइड किया जाए, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। Once we are done with the structure, organization and time management parts, फिर हम बात करेंगे कि ऐसे के लिए आपने पढ़ना क्या है, हाउ टू वर्क ऑन आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंटेशन। कौन सा कंटेंट आप लोगों ने पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप अभी जून के स्टार्ट में खड़े हैं। If you just prepare your essay from this day onward, अगले 15 दिन में आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आपको अगर ग्रामर के कुछ इश्यूज हैं तो वो भी मैं कुछ हेल्प आउट कर लूंगा, सिंस यू विल बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। एंड इवेंचुअली आप कंटेंट आइडिएशन एंड आर्गुमेंटेशन के ऊपर भी 15 जून ऑनवर्ड काम करना शुरू कर लेंगे। सो विद इन 3 months you would see a very dramatic change in your overall writing as well as in your overall approach to CSS exam, क्योंकि ऐसे इज द मदर ऑफ ऑल पेपर्स। अगर आप इस वेग सिलेबस को किसी क्वांटिफाइबल कंटेंट में डिकंस्ट्रक्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाकी तो सब्जेक्ट्स इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। खुद से भी आप ये चीजें कर सकते हैं, ऑनलाइन बड़ी किताबें हैं, बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं। बट चूज अ मेंटोर, इट इज गोइंग टू गाइड यू, ही इज गोइंग टू गाइड यू, ही इज गोइंग टू हेल्प यू, ही इज एक्चुअली गोइंग टू टेक यू to the areas unexplored before। ये हमारा एक लाइन ऑफ थिंकिंग होगी। हम ये डिफरेंट तरह के जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे, उसमें वन वर्ड, इशू बेस्ड टॉपिक्स, स्टेटमेंट, आर्गुमेंटेटिव, फ्यूचर, क्वेश्चन, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम। स्पेसिफिक अगर टॉपिक्स की बात कर लें तो हम ज़रा इस तरीके कार से चलेंगे। वन वर्ड या इशू बेस्ड जो टॉपिक्स होंगे वो हम ये करेंगे, इनके ऊपर हम एक डिटेल्ड आउटलाइन क्लास में बनाएंगे बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज हु हैव क्वालिफाइड इट। फिर हम इस कैटेगरी को देखेंगे लाइक यूएन सक्सेस और फेल्यूर, IMF SAPs, कर्स और ब्लेसिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है टॉपिक्स की जिसके मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। and then and then these topics shown as such, some of the most updated topics that are being asked in recent days, few more to that। सो ऐसे का पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट पेपर है, लेट्स एक्नॉलेज इट, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली वे यू कैन डिफीट योर हार्ड लक इज थ्रू हार्ड लेबर। आप मेहनत करेंगे, डायरेक्शनल मैनर में मेहनत करेंगे, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इट। That's all from my side. House is open for questions and answers if any.